Hello coders, welcome back to Simply Dev. So now let's see that what is routing in React.js. तो उसको अच्छा समझने के लिए I'll just open one website called Mitra. So you guys will better understand that what is routing. So now I am on the home page of Mitra. So you guys just focus on the URL. तो अभी URL क्या है? So this is our URL, that https उसके बाद www.myntra.com. But when I will click on men, you will see that the URL changes and the URL becomes slash shop slash man. And when I will click on women section, it will again change. So it is nothing but it is routing. So in first video I have told you guys that React.js जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं थ्रू React.js, it is a single page application. Why it is a single page application? तो पहले क्या रहता है, अगर हम देखें नॉर्मली जनरली अगर React यूज नहीं कर रहे, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे कि आई एम ऑन द होम पेज, आई वांट टू एक्सेस मेन वाला पेज, ठीक है. तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर हमें मेन का पेज दिखेगा. सेम इन द केस ऑफ वुमेन के सेक्शन में अगर जाना है तो वुमेन की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर एंड देन वी विल सी द वहां से रिस्पॉन्स आएगा एंड देन वी विल सी द वुमेन पेज. बट रिएक्ट के केस में ऐसा नहीं होता. क्या होता है, इनिशियल रिक्वेस्ट तो आएगा सर्वर से, सबसे स्टार्टिंग में तुमने लोड किया पेज, तुम होम पेज पे हो, तो अभी रिक्वेस्ट गया सर्वर से, अब तुम्हें आया होम पेज आया. उसके बाद when you will go to men's section or men page, so at that particular time the request will not go to server, the request will handle in React. Same with if I am going for to women section, so the request will go to React instead of server. So React will automatically inject its code to browser और हमें वो सेक्शन दिखेगा, जिसकी वजह से बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है और हमें थोड़ा सा लैग कम दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन. ठीक है, तो अभी हमारा जो सेम ऐसा रिमूव दैट ये ब्लॉक का पेज था. व्हाट आई वांट इज दैट कि अभी इन फ्यूचर वी विल मेक वन पेज कॉल्ड क्रिएट, और ये जो हमारा पेज है जो अभी तुम्हें दिख रहा है दैट इज होम पेज. तो आई वांट कि अगर मैंने स्लैश किया होम पेज दिखे, बट so when I will just type create, I should be able to see my create page. So अभी ये कैसे करेंगे React में? Okay, you guys can refer React Router 6 documentation. So from there only I just import these things. तो अभी मैंने इसको कमेंट किया है. Let's understand that कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, so अगर मुझे React Router यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू जस्ट इंपोर्ट दीज थिंग्स. ठीक है, ब्राउजर राउटर्स फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमूव दिस. ठीक है, और लिंक्स की भी कोई जरूरत नहीं है अभी. बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल React Router DOM. सो ये वाला जो पैकेज है तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा. चलो जस्ट शो यू हाउ टू इंस्टॉल इट. तो उसके लिए एक कमांड है react npm install, or you can say I'll install React Router @6 React Router DOM @6 means we want sixth version. We'll just hit enter. Now let's wait for a few seconds. Okay, so now if you want to check that we have installed our package or not dependency, you can go to package.json and here you can see that we have installed React Router DOM with version this 6.2.1.3. okay? So now I'll just again run it. Okay, so अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी इसको नहीं देखते. तो हमने जो पहले कोड क्या किया था कि
ये कंपोनेंट है, एक navbar है, एंड सेकेंड वन इज होम. सो जस्ट इम्पोर्टेड एंड जो हम देख सकते हैं अपने यूआई में. ठीक है. नाउ व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट आवर राउटिंग टू बी हैपन. So for that purpose, we will just uncomment this. Oh, sorry. अरे तो इसको यहाँ यूज नहीं करना. So I will just use routing in this. Okay. I will remove this home component, or else I can just comment this. Format document. Okay. So what I have done is that I have used browser router. So इसका मतलब क्या है कि basically to connect with our browser we have to use browser router. और उस browser router के अंदर जितने भी routes होंगे तो we will use routes. और उस routes के अंदर हमें specify करना पड़ेगा अपने route को. तो ये सिंटेक्स समझ लो, जो समझना समझ लो, ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है. तो ये पाथ, व्हाट इज दिस पाथ? सो दिस पाथ इज बेसिकली ये जो हम यहाँ पे यूआरएल में डालेंगे. ठीक है. और ये एलिमेंट क्या रहेगा हमारा? एक कंपोनेंट. ठीक है. तो एक कंपोनेंट है, तो हमें होम कंपोनेंट दिखना चाहिए. लेट्स ट्राई दिस. इसका मतलब अगर हम ये यूज भी नहीं करते अपने साइट पे तो बेसिकली इसका मतलब वही स्लैश ही. तो हमें होम कंपोनेंट दिख रहा है, बट फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी की दूसरे पेजेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. लेट मी मेक वन पेज कॉल्ड create.js and I will just use react snippet. तो प्रॉपर काम हो गया. तो ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं उसको. import create.js. okay properly. now अब मुझे अगर स्लैश क्रिएट पेज पे जाना है, सो व्हाट आई विल डू इज, बस हमें यहाँ पे वन मोर लाइन यूज करनी है. और मैं क्या चाहता हूँ कि क्रिएट पेज पे जाए मेरा, और मेरा कंपोनेंट ये ना हो. आई विल जस्ट यूज क्रिएट. नाउ लेट्स सी. अगर मैं इसको देख रिफ्रेश करते हैं तो होम पेज के लिए तो यही पेज दिखेगा, बिकॉज इट इज ओनली अवर होम पेज. नाउ लेट्स सी क्रिएट पेज. यस, क्रिएट पेज, यू कैन सी आवर क्रिएट पेज. तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो वैसे ही अभी जब मैं क्रिएट पे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये पेज दिखेगा. अभी देखो, लेट्स गो टू होम पेज एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पेज, ये प्रॉपर क्रिएट पेज पे जा रहा है. एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है वो भी देखते हैं हम. तो ये navbar में लेट्स सी द navbar component. So this is our navbar component and we have made two links. So ये प्रॉपरली काम कर रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं कि रीडायरेक्ट कर रहे हैं क्रिएट पे स्लैश क्रिएट. और सेम हम यहाँ देखेंगे तो app.js में क्रिएट पे लिंक कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो अभी अगर एल्स मैं बोलता हूँ कि तुम्हें अभी क्रिएट जा रहे हैं तो इसको क्रिएट डबल ई करो. नाउ लेट्स गो. अभी कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें. ठीक है. और अगर मैं यहाँ डालूंगा क्रिएट, अब मुझे क्रिएट का पेज दिखेगा. बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट कि मेरा पाथ ये होना चाहिए जब भी मुझे ये एलिमेंट दिखना चाहिए. ठीक है. तो लेट्स सपोज करो अभी मेरा एक्चुअल में क्रिएट ही होगा, तो अभी बराबर वो आ जाएगा. हाँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओके क्रिएट पेज दिख रहा है. बट व्हाट आई वांट इज कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरा होम पेज दिखे, और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ तो क्रिएट पेज दिखे. बट ये प्रॉपरली अभी काम कर रहा है. बट इन रिएक्ट हम क्या करते हैं, बट हम HTML के अंदर वी यूज दिस एज href, बट इन रिएक्ट वी यूज लिंक इंस्टेड ऑफ एंकर टैग्स. So I'll just show you that how to, कैसे होगा.
तो नए पार में जाऊंगा, आई विल जस्ट इंपोर्ट, आई वांट लिंक्स, लिंक का अभी इंस्टेड ऑफ एंकर आई विल यूज लिंक टैग, लिंक, ओके, and instead of href attribute I will use 2. This is how we actually use link tag instead of anchor tag. The same here goes to here, same with this and same with this. Okay, now let's see that कि अभी भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहा. Link is not void element tag and must neither have children nor use dangerous. What is this error? ठीक है यार, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं. Okay, sorry, I forgot. Huh? Okay, I have to use capital L. Now it should work. अरे बाप रे. Okay, so we were getting this error. So मैंने इसको search कर रहा कि what is this error actually. So I found one article and here it says that you are using link from React Router DOM. Okay, which is calling use context. Okay, but why it is calling use context? Let's see that. The context it is looking for is provided by browser router, but your app is not wrapped by browser router. You are index.js. So what it basically says that our app is not wrapped around browser router. Okay, so what we can do is uh, we can go to app.js and here can use now. Let's see. Yes, error has been solved. Okay, तो हमारा बेसिकली जो ऐप था प्रॉपर रैप नहीं था, हम यूज कर रहे थे कि oh I got it कि हमारा नैप बार ऊपर है ना, and we were actually using browser router on this 20th line, मतलब नैप बार के भी नीचे, so it was not including navbar component, that's why we were not able to use link here. तो मैंने link use करा, so that's how you use link instead of anchor tag, or instead of href attribute you can use 2. तो now let's see finally होता है, वर्क करता है ये, इट इज वर्किंग. तो हमने दो कॉन्सेप्ट देखे कि कैसे राउटिंग होता है और उसमें लिंक कैसे यूज होता है. So these are commonly things which you will do in basically while making a React app. तो तुम्हें पता होना चाहिए.